You can start, ma'am. Okay, sir. Hi, good morning, everyone. So, if you people have any doubts from the last class, you people can just let me know. Or else, we are just starting with today's topic. Where the topic for today is marketing mix. We have done in the previous classes marketing, importance, nature, and in the last class, we have covered marketing environment, in which we had covered micro environment and macro environment, the scope, nature, objectives. So the last topic for the first unit is marketing mix. So we have done little bit from that also. We have just discussed little bit from marketing mix in last class also. So what all things we would be covering in this chapter would be meaning of marketing mix, elements of marketing mix, determinants of marketing mix, factors determining marketing mix, importance of marketing mix. So what do you people understand by marketing mix? Yeah, what is marketing mix? Let's just read what is the definition given by the author. So in order to satisfy the needs and want of its customer, every business firm must develop an appropriate marketing mix. Marketing mix refers to the combination of four basic elements which constitute the core of company's marketing system. These four elements are the product, the price structure, the promotion activity, and the distribution system, which means the place. So I have told you before also in the marketing mix there are four elements which says the product, price, place, and promotion. These four P's are interrelated and their decision. See, अगर आपका प्रोडक्ट है उसका डिसीजन प्राइस पे इफेक्ट करेगा, प्राइस का डिसीजन प्रोडक्ट पे, हमारा ऑल टुगेदर इफ वी आर टॉकिंग, सो ऑल सारे इन चारों फैक्टर्स का एक दूसरे पे एक डिपेंडेंसी है, इन्फ्लुएंस का डिसीजन है। अगर आप कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गलत, आप कोई डिसीजन गलत लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं वो हमें रीएम्बर्स या फिर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा हमारी सेल्स पे, ऑल टुगेदर हमारे प्रमोशनल पे। हम प्रमोशन किस चीज का करेंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है और किस जगह पे अवेलेबल है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर बीन प्रमोटेड बट इट इज नॉट अवेलेबल, सो हमारा जो सारी एक्टिविटीज होती है, सारे प्राइस स्ट्रक्चर होता है, वो सब कंप्लीटली जीरो हो जाता है, वो कंप्लीटली नॉन इफेक्टिव हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, marketing mix is a combination of four elements: product, price, distribution system, promotional activity, used to satisfy the needs for organization target market at the same time achieve its marketing objectives. So I have told you marketing mix में हमारा total क्या हो गया? See, if you people are not able to see my font size is small, just please message me on the message me so that I can just increase the size. Wait, I'll just increase it only. I think so this would be better now for you people. So marketing mix refers to the more definitions. Marketing mix represents the total marketing program of an enterprise. Different customer groups differ in their incomes, education, habits, and preferences. They may respond to the same marketing mix in the different ways. Therefore, marketing mix should be decided to suit a particular market. The basic purpose of marketing mix is to satisfy the needs and wants of the customer in the most effective manner. One minute, please. In the most effective manner. As the need of the customer changes, the marketing mix may also have to change from time to time. Marketing mix is thus the dynamic concept. Dynamic, what do you understand by the word dynamic? I've already explained this before. But so dynamic is like with time, with
season. With everything, the things are changing, marketing is changing. We have to adapt our marketing, we have to change our product in such a manner. If it is not a see, if we are dealing with the technological products, so we have to keep that market, that market is very dynamic. So if we see that there that product, that market is dynamic, so we have to technologically upgrade our products from time to time in such a manner that it is not a problem for our sales. We are able to do each and everything. जो हमारा basic purpose है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होए, कस्टमर लॉयल्टी रहे। वो किस चीज से सेटिस्फाई होगी हमारी? जब हमारी चीजें, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्ले, हमारा प्राइस और अवेलेबिलिटी एकदम ठीक जगह पे होगी। वी से दैट ना, इफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट राइट प्राइस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, then only we are able to satisfy the customer needs, then only we are able to help the customer what they want and what price they are looking for. So that is the thing which is important. Marketing mix is important due to following reasons. It is decided keeping in view the needs and the desires of a target group of customers. Therefore, it helps the firm in increasing sales and profit. ऑटोमेटिकली हमने ये चीज बोली है, अगर हमने, आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस बिफोर लाइक अ मिनट बैक, अगर हमारा मार्केटिंग मिक्स बहुत अच्छे से डिजाइन है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट है, देन वी आर टारगेटिंग अ राइट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे क्या होगा? हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। सेल्स इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली देयर वुड बी एन अपवर्ड ट्रेंड इन आवर प्रॉफिट आल्सो। हो सकता है हम एट टाइम्स क्या होता है, इनिशियली व्हेन द बिजनेस इज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड और जस्ट started, so what the people do is they first of all they target the group इनकी, हमें एक कस्टमर लॉयल्टी मिले, कस्टमर रिप्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं, लॉयल्टी बोलते हैं, वो हमारे पास रहे सबसे पहले। देन वी वुड जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग आवर सेल्स, एंड देन धीरे धीरे हम प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी हम कब इंक्रीज कर सकते हैं? जब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट प्लेस, जो हमारा प्रोडक्ट और प्राइस है, वो एकदम परफेक्टली मैच करता है हमारे टारगेट ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को, देन वी हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज आवर प्रॉफिट। तो वो धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहता है। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स which are interrelated. Therefore, marketing mix represents an integrated approach to marketing. Marketing integrated means all together as a globe. Integration जो हम बोलते हैं, togetherness बोलते हैं, वो उसी का पार्ट है marketing का। It serve as a link between the business firm and its customer. It helps in pursuing customer oriented marketing. Marketing mix is changed with changes in the requirement of the customers. It helps in maintaining an equilibrium between the business firm and its marketing environment. Equilibrium का मतलब क्या होता है? कि एक कंपैरिजन, एक बैलेंस बना के रखता है किस चीज में? बिजनेस फर्म और मार्केटिंग फर्म के बीच में, हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बीच में। सो ऑटोमेटिकली एक इक्विलिब्रियम रहेगा, बैलेंस रहेगा, अगर हम अपनी मार्केटिंग मिक्स को विद टाइम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डन कवर्ड विद दिस टॉपिक? फर्स्ट वी हैव सी व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स। हमने 4 एलिमेंट पढ़ लिए हमारे मार्केटिंग के क्या है। उसके बाद हमने उसका इम्पोर्टेंस पढ़े हैं कि हमारा उस रीजन से क्या क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स का, अगर हम एज अ होल एक मार्केटिंग की बात करें। Next, we will do each element one by one. So, what are the element? Product mix. प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स आता है। प्रोडक्ट मिक्स refers to the combination of various features relating to the product or services to be offered for sale. It involves decisions concerning the quality, size, range, package, brand name,
label, warranty, and services. These product related activities are directly usually at a specific group of customers called the target market rather than a customers at a large. So प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीजें हमें बताई है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हो और जिसको हम सेल ऑफ कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो हमने वहां पर रखा हुआ है और वो हम सेल के लिए लगा ही नहीं सकते। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें कौन सी किससे रिलेटेड जो हमें सेल के लिए ऑफर करनी है, उसमें किस तरीके के डिसीजंस इन्वॉल्व है हमारे, किस क्वालिटी की चीज रखनी है हमें, किस साइज की चीज रखनी है, कितने रेंजेस बनाने हैं हमें साइज में, पैकेज क्या है हमारा, ब्रांड नेम क्या रहेगा, लेबल क्या रहेगा, वारंटी क्या रहेगी और उसकी सर्विसेज क्या रहेगी। सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज आल्सो। सो ये सारा हमारा किसका पार्ट है, प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। दीज प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आर डायरेक्टली usually at a specific group of customers called the टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मैंने बोला अगर मेरे एक फर्म है और सी इफ आई हैव अ बुक, मैं एक बुक को प्रिंट करती हूँ तो मेरे लिए टारगेट मार्केट क्या है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कौन से, अगर मैं स्कूल की बुक्स को प्रिंट कर रही हूँ तो स्कूल की टीचर्स को मेरे को टारगेट करना है जिससे कि वो मेरे ऑथर की बुक, जिससे कि जो ऑथर की बुक मैं प्रिंट कर रही हूँ वो सेल ऑफ हो कॉपीज। अगर मेरे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स की बुक है तो मैं कॉलेज के टीचर्स को टारगेट करूंगी बिकॉज आई पर्सनली वांट कि वो लोग मेरी बुक, मेरे जो मेरा ऑथर है जिसके साथ मेरी कोलैबोरेशन है उससे बुक्स मेरी सेल ऑफ हो। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट कि मेरा टारगेट मार्केट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आई कैन टारगेट, इसके अकॉर्डिंग ही आई कैन जस्ट मेक अप माई माइंड कि मुझे किस ग्रुप को टारगेट करना है। नेक्स्ट वी हैव consumers consider a product as a bundle of satisfaction rather than as a physical item। बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है अगर आपको कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको उससे कोई एक सिंगल सेटिस्फैक्शन, जैसे हम बात करते हैं कि एक फिजिकल आइटम हमने खरीद ली, सेटिस्फैक्शन एज अ होल मिलेगी बंडल की हमें, उससे क्या कंफर्ट लेवल क्या है। अगर आपने कोई एक ऐसी चेयर खरीदी है, एक यू हैव बॉट वन चेयर फॉर योर रूम, सो उससे आपको क्या, आपको क्या हम बोलते हैं कंफर्ट लेवल क्या है, आपकी जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई नहीं हुई उसको खरीदने के बाद। तो एक बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा एज अ होल क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है। So, for example, the buyer of a washing machine wants speed, comfort, and trouble-free operation rather than just a box of metal, plastic, and electrical components. So, इसमें एग्जाम्पल किस चीज का लिया हुआ है, वॉशिंग मशीन का। अगर हम वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो वी वांट स्पीड, कंफर्ट और ट्रबल फ्री ऑपरेशन होना चाहिए। इनिशियली कुछ वॉशिंग मशीन में स्टार्टिंग में ऐसा क्या होता था, वो बहुत ज्यादा आवाज करती थी तो वो एक ट्रबल हमेशा से रहता था, या फिर पानी निकल जाता है मशीन में से या फिर लीक होता है किसी किसी वॉशिंग मशीन में से। सो इट शुड बी ऑल टुगेदर अ ट्रबल फ्री ऑपरेशन रादर देन जस्ट कि एक मेटल का डब्बा हमने प्लास्टिक का और एक इलेक्ट्रिकल चीज लाके रख दिया है। तो एज अ होल हमें अनलेस एंड अनटिल वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, इट मेक्स नो सेंस। नेक्स्ट वी हैव प्राइस मिक्स। Price mix involves decision regarding the basic price of the product, discount, allowances, credit, terms of payment, etc. Price means the value of money the customers has to pay in exchange for a product. Price mix should be decided keeping in view the cost of producing and marketing the product, purchasing power of the target group of the customers, degree of competition in the market,
The profit margin desired by the seller, discounts, allowances to be offered to the dealers, customers as incentives, etc. सो प्राइस में बेसिक प्राइस के अलावा हमारे पास क्या क्या है कि उसमें हमें डिस्काउंट क्या देना है कस्टमर्स को, अगर हम कुछ अलाउ कर रहे हैं, अलाउंसेस क्या है, हमारे क्रेडिट के टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या रहेंगे, आपको जो आपकी बेसिक शॉप्स होती है, राशन की शॉप्स होती है, दे पीपल एट टाइम्स प्रोवाइड यू क्रेडिट। सो अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं, इफ आई एम गिविंग क्रेडिट टू यू, यू आर गिविंग क्रेडिट टू मी, तो वो आपको अपने प्राइस के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक टाइम का हर एक उसका पैसा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दैट वुड कॉस्ट यू मनी। सो वो आपको अगर कॉस्ट करता है मनी, तो वो आपको प्राइस के स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि आप अपने प्राइस के स्ट्रक्चर को या आप अपनी चीजों को कम कर पाओ। So automatically that thing would be included in your price structure. Next we have, it says that the price means the value, money value to that the customer has to pay in exchange for the product. सिंपल है, अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस हमें कस्टमर कब देगा, अगर हम उसको प्रोडक्ट देंगे, तो प्राइस क्या है, इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट हमसे देता है। Next, there is a word called purchasing power of the target group of customers. Purchasing power का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के पास कितने पैसे हैं या फिर क्या उसकी पावर है कि वो हमारे ग्रुप हमारे प्रोडक्ट को खरीद पाए। अगर मैं एक टूथपेस्ट के ब्रांड चला रही हूँ, अगर वो 50 रुपीज का टूथपेस्ट में मैं रखती हूँ और जिस ग्रुप को मैं टारगेट कर रही हूँ, हो सकता है वो 100 रुपीज का टूथपेस्ट खरीद सके और मैं उन्हें 50 को ऑफर कर रही हूँ, वो एट टाइम्स खरीदेंगे ही नहीं, थिंकिंग दैट कि वो एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और अगर हो सकता है मैंने 50 का रखा है बट मेरा टारगेट ग्रुप के वो एक सर्कल है जिसमें वो 30 रुपीज ही अफोर्ड कर सकते हैं या फिर स्मॉल पैकिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इफ आई एम कीपिंग माय पैकिंग्स टू बी बिग और उसको मैं एक्सपेंसिव रख रही हूँ या फिर ओवर प्राइस रख रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, बिकॉज मेरा टारगेट मार्केट ही गलत है। तो जैसा मेरा टारगेट मार्केट है उसकी मेरे को परचेजिंग पावर की मेरी मेरा जो एक कस्टमर का ग्रुप है वो क्या चीज खरीद सकता है, क्या चीज कर सकता है, उसके बिना मेरा सारा जो करना जो जो मैं एफर्ट्स डालूंगी वो सब कंप्लीटली वेस्ट है। डिस्काउंट कितना देना है मुझे, मैं ओवर द बजट जाके डिस्काउंट दूंगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए नुकसान है। और अगर मैं अलाउंसेस दे रही हूँ क्रेडिट के, मैं कितने अलाउंसेस दे रही हूँ, मैं 1 महीने का दे रही हूँ, 2 महीने का दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्राइस बढ़ती जाएंगी। इंटरेस्ट, मेरा इम्प्यूटेड इंटरेस्ट जो होता है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट होता है जो मेरा खुद के पैसे लगे हुए हैं उस पे भी मुझे, इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड दैट इंटरेस्ट समवेयर एल्स, तो मुझे उस पे क्या पैसा मिल रहा है। सो दैट इज दैट यू मीन बाय इम्प्यूटेड इंटरेस्ट या इम्प्यूटेड रेंट। अगर हम रेंट की बात करते हैं, तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का लैंड है, सो इम्प्यूटेड रेंट मीन्स एक इंटरेस्ट होता है, अगर आप ये लैंड अगर आप कहीं किसी को रेंट पे देते हैं, आपको क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलती, सो दैट कॉस्ट वुड बी आल्सो बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस की आप उतना अर्न कर भी रहे हो कि जो आपने अपना एरिया भी यूज किया व्हेन स्टिल यू आर नॉट अर्निंग दैट। सो वी आर डन विद द प्रोडक्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट हमारे हमने प्रोडक्ट सोच लिया, हमने लेबलिंग वीबलिंग कर ली, लेबलिंग करके हमारा जो हमारी कॉस्ट पड़ी हमने वो देख लिया, हमने उसमें देखा कि हमारे पास कितना स्कोप है कि हम उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड कर सके या कितना स्कोप है हम उसमें क्रेडिट प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट वी हैव कि प्लेस और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, अगर हम बात करते हैं कि किस किस जगह मेरे को कैसे अपना प्रोडक्ट किसके पास पहुंचाना है, फिजिकल पोजेशन इसमें आता है कि फिजिकल पोजेशन क्या है कि मुझे मेरा मेरा प्रोडक्ट किस प्लेसेस पे कितनी दुकानों पे और कैसे अवेलेबल रहेगा। किसी किसी प्रोडक्ट के साथ आपने देखा होगा दैट दे पीपल हैव अ मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा कि मैं आपको एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, एक तरीके की राशन की 10 दुकानें हैं,
किचन वेयर की 10 शॉप्स है एक मार्केट में, तो आई वुड सिंपली जस्ट गिव टू वन पर्सन, और वो बोलेगा कि भाई अगर आप मुझे प्रोडक्ट में तुम्हारे खरीदता हूँ तो आप मेरे आसपास वालों को सेम चीज नहीं दोगे। तो ऑटोमेटिकली उसने मोनोपोली बना ली मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके, उस ब्रांड को लेके। सो मुझे वो दिमाग में रख के अपना ये चीज देखनी है कि प्लेस मेरे को कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट कैसे कहाँ अवेलेबल करवाना है। सो place or distribution mix consists of all the activities involved in transferring ownership and the physical possession of the products to the customers। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सबसे पहले प्लेस में, अवेलेबल जहां हुआ वहां से एक्सचेंज मैकेनिज्म, फिजिकल पोजेशन मींस ट्रांसफर होगी ओनरशिप में, पहले ओनरशिप मेरी थी फिर अब ओनरशिप आपकी हो गई है। इट्स पर्पस इज टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस available to the customer at the right time at the right place। Distribution mix includes channel of distribution and physical distribution। सो कस्टमर के राइट टाइम और राइट प्लेस पे जब तक हमारा गुड्स अवेलेबल नहीं होगा, इट मेक्स नो सेंस, और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम फेल होने लग जाएगा, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी, हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। So, physical distribution includes all those activities which are involved in moving products or services from manufacturers to consumers। It consists of transportation and storage of goods। Physical distribution, कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किससे, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज हम जो बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी इंक्लूडेड रहेंगी। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द routes through which goods move from producer to consumer। A firm has to decide whether to sell goods, whether to sell directly or to sell through middlemen। The number and the types of middlemen have to be decided। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था दैट देयर आर फ्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वन मैन चैनल भी होता है जिसमें वन चेन होती है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक गई। टू चेन्स, मैन्युफैक्चरर हमारा होलसेलर आता है, फिर हमारा फाइनल रिटेलर आता है। चेन्स है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो रही है। फिर अगर हम और इंक्लूड एक्सटेंड करते हैं चेन को, हमारे पास मैन्युफैक्चरर आता है, एजेंट आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, एक ये और लंबी चेन हो गई है। सो जैसे जैसे हमारी चेन बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारे कॉस्ट बढ़ती रहती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कोई हमारा पेरिशेबल गुड है तो उसकी ऑटोमेटिकली चेन बहुत छोटी होगी। अगर हम बात कर रहे हैं हाई एक्सपेंसिव गुड्स है, उसकी चेन लंबी होती है, मेजॉरिटी लंबी होती है। एट टाइम वन चैनल कम्युनिकेशन भी, वन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एम aimed at producing customers to buy the product। The various elements of promotion mix are as under। प्रमोशन क्या होगा, हमने प्राइस प्रोडक्ट भी फाइनल कर दिया, प्राइस हो गया, सब जगह अवेलेबल भी हो गया। नेक्स्ट क्या है कि हमें अब कस्टमर के दिमाग तक कैसे पहुंचना है या कस्टमर को परसुएड कैसे करना है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को खरीदो। तो वो कैसे हमें बताना है या वो कैसे हमें क्या क्या चीजें टूल यूज करनी है। लेट्स सी एडवर्टाइजिंग। It includes activity concerned with providing product information to the customers through newspapers, radio, television, and other non-personal media। It is paid for by the seller। कौन पे कर रहा है,
जो सेलर है ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजिंग अगर वही कर रहा है तो उसी को पे ऑफ करना पड़ेगा। किसके थ्रू एडवर्टाइजिंग हम कर सकते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं, और अदर नॉन पर्सनल मीडिया भी होती है, जिसे हम किसी किसी में न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आते हैं। नॉन पर्सनल हो गई कि एक तरीके के वर्ड ऑफ माउथ हो गया। आपने कोई एक चीज खरीदी, आपको वो अच्छी लगी, आपने अपने फ्रेंड को बताया, so दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। आपने बोला यार नहीं ये चीज तो बहुत अच्छी है, आप ये जरूर ट्राई करना, सो वर्ड ऑफ माउथ, इनडायरेक्ट, नॉन पर्सनल। मेरी कोई पर्सनल मैंने मीडिया यूज नहीं करी या मीडियम यूज नहीं किया, स्टिल मेरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो गई है, एडवर्टाइजिंग हो गई है। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल सेलिंग। इट refers to face communication between a seller or his representative and the buyer. Salesperson of an enterprise assist and persuade the prospective buyer to buy the product. पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा, सेलिंग एजेंट्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं हर एक फर्म में। तो उनका बेसिक पर्पस रोल क्या होता है? आपको परसुएट करना या पर्सनली असिस्ट करना, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताना। इसमें क्या रोल है? इसमें क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स होता है कि आपके अंदर, आपकी फर्म के पास जो सेल्स पर्सन है वो किस क्वालिटी के हैं, किस आई वुड से क्या एजुकेशन है। सी जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितना पोलाइट वे में वो कस्टमर से बात करेगा, आपको कस्टमर को एज अ होल वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, एंड कस्टमर्स कैन गेट परसुएडेड इजीली एज कंपेयर टू द केस वेयर आपका सेल्स पर्सन थोड़ा रूड हो जाता है कस्टमर्स के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर वोंट गो फॉर दैट प्रोडक्ट। Next, we have sales promotion. It means increasing sales through short-term promotional activity such as displays, demonstrations, fashion shows, exhibition, prize, contest, coupon, etc. These are aimed at supporting advertising and personal selling. सेल प्रमोशन हमारी क्या है? आपने देखा होगा सेल प्रमोशन स्कीम्स चलती हैं यूजुअली दिवाली के टाइम, बट दे आर वेरी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज। उनके प्रमोशनल जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होती है वो एक्टिविटीज। सो सच एज दीज इंक्लूड्स डिस्प्लेज, डेमोन्स्ट्रेशंस, फैशन शो, एग्जीबिशन, प्राइस कॉन्टेस्ट, कूपन। ये सारा किसका पार्ट है? हमारा प्रमोशनल मिक्स का पार्ट है, हमारे इन सारा इन सब चीजों का ही पार्ट है। तो ये क्या चीज को हमें सपोर्ट कर रही है? हमारे एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट सपोर्ट कर रही है और पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट कर रही है। पब्लिसिटी क्या होता है? it it means to mention of the company brand or product, newspaper, journals, radio, etc. A favorable report by a news media on a company or a product has a significant impact on the customers. Publicity is not paid by the seller. It is relatively a minor form of promotion because the seller has no control over what the media will mention. पब्लिसिटी क्या हो गया? हमारी फॉर्म अगर मैं बोलती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है कि मीडिया क्या पब्लिश करेगी। रेडियोज में क्या चीज, कभी कभी क्या होता है, कोई खराब चीज होती है, वर्ड ऑफ माउथ, ऑटोमेटिकली आपका कोई कनेक्शन है किसी चीज से, तो वो धीरे धीरे वो चीज होती जाएगी। तो वो चीज ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी अगर आपका सिग्निफिकेंट रोल है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और चीज अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ, मीडिया ने अच्छा मेंशन किया, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की सेल बूस्ट अप हो जाएगी।
और वाइसा वर्सा केस होगा, अगर आपने वो चीज ढंग से नहीं करी है तो धीरे धीरे करके आपके प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। सो हमने अगर इफ वी से प्रमोशन मिक्स में 4 पीस करे हैं अभी हमने, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन में हमने क्या किया है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये सारा एज अ होल हमारा मार्केटिंग मिक्स का प्लान है। अब देखते हैं एक बारी मार्केटिंग मिक्स एज अ ग्लैंस सिंपल एक समरी पार्ट करके कि क्या क्या चीज हमने इंक्लूड करी थी हमारे प्रोडक्ट मिक्स में। हमारा प्रोडक्ट की रेंज आ गई, क्वालिटी क्या थी, हमारा ब्रांड का नाम क्या है, पैकेजिंग और लेबलिंग हमने किस तरीके की करी है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, वारंटी क्या है हमारे डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्राइस, कितना प्राइस हमें चार्ज करना है, डिस्काउंट, अलाउंसेस कितने हमें देने हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, क्रेडिट में हमें क्या चीज किसको कैसे देनी है। नेक्स्ट वी हैव प्लेस में प्लेस मिक्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज कर रहे हैं हम, वेयर हाउसिंग इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। ये सारा किसका पार्ट है, हमारा प्लेस का पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन में इट इज वेरी मच इंटर रिलेटेड। पब्लिक रिलेशन आपका और सारे फॉर्म से क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, कितना हेल्दी कंपटीशन आप लोग कर रहे हो, एंड हाउ इज द टॉकिंग टर्म्स, दीज आर इंक्लूडेड इन पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग मिक्स फॉर द सर्विसेज। अभी हमने किसकी बात करी है, प्रोडक्ट की, सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विसेज की। So if we talk about the product, the marketing for the services can be successful only when the service product is designed to match the customer's point of viewpoint. It becomes therefore necessary to understand what benefits the customer is seeking from the service. For example, from a restaurant's owner's viewpoint, he may simply be selling food, but the customers coming to a restaurant may be seeking an outing, relaxation, entertainment, and even status. In order to understand the customer's point of view, the service provider should analyze his service at the following levels. हम किसकी बात कर रहे हैं, अब सर्विस की। हमें अब खाना नहीं देखना, हमें ये देखना है वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो द कस्टमर बेनिफिट कॉन्सेप्ट, द सर्विस प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन कीपिंग इन व्यू द बेनिफिट्स कस्टमर्स आर सीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, द कस्टमर्स may seek recreation, entertainment, education, and status from a club. The service concept at this level, the specific benefits which the service offers are defined. For example, a club might offer drama, dance, musical concept, kavi sammelan to satisfy the entertainment objective. किसी किसी आप क्लब्स में जाते हो, लॉन्जेस में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, फाइन डाइन, तो वो आपको क्या एट टाइम्स डीजे होता है, सिंगर्स आते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो वो साइड बाय साइड आप यू आर नॉट पेइंग खाली फॉर फूड, फूड में आपका एम्बियंस के पैसे हैं, आपको वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस चीज के पैसे हैं। नेक्स्ट वी हैव द सर्विस फॉर्म्स, the way service is provided refers to the service form. The club may provide all the dance shows to the members against an yearly fee or a seasonal ticket. Alternatively, it might prescribe a separate entrance ticket for each dance performance. सब तरीके का different है. The service delivery system, this implies the mode of delivery of service. For example, a check is used to withdraw money from the bank. Similarly,
The club may use ticket passes or membership cards for the entry into the dance hall. So सबका सिस्टम अलग है, डिलीवरी सिस्टम अलग है सब चीजों का. So the service products should be targeted at a specific market segment which has a definite need for the service. For example, the distance education services is targeted at working person. In addition, the different services sold by an enterprise must complement and support each other. These services should be designed keeping in view the services offered by the competitors. सो ये सारी चीजें हमारा किसका पार्ट हो गया? सर्विसेज का. एक बारी जस्ट लेट्स सी द डेफिनेशंस. सेकंड. Next is pricing. So in the case of services, prices is known by different name. एजुकेशन में सर्विस प्राइस का क्या नाम है? ट्यूशन फीस. लीगल सर्विस में फी होती है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में फेयर होता है. इंश्योरेंस सर्विसेज में प्रीमियम होती है. बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है. प्रॉपर्टी यूज में रेंट होता है. ब्रोकरेज में कमीशन होती है. पब्लिक यूटिलिटीज में टैरिफ होता है. So pricing of services is difficult, definitely. In the case of highly tangible and people-based services, it is difficult to calculate the cost and determine the price. In professional services, for example, doctors, lawyers, fees are not uniform. The seller has greater freedom to fix the price according to the customer's ability to pay if the service is unique in nature. Sometimes the price of the service may be settled through bargaining the seller and the buyer. The prices of the public utility service is fixed by the government. In the case of the prices may be used as an indicator of quality. Perishability is an important consideration in the pricing of the services. जो perishable item है automatically उसकी चीजें जल्दी खराब होंगी तो हम उसको बहुत ज्यादा हाईली प्राइस नहीं रख सकते. कुछ चीजें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, डिसेंट प्राइसेस होते हैं क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम होती है. अगर हम 2-3 दिन में नहीं अगर वो सेल ऑफ होती है वो कंप्लीटली वेस्ट है. तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस उसी तरीके से प्राइस होता है. अगर हम बात कर रहे हैं देयर आर फॉलोइंग सिस्टम प्राइजेस एक टेक्निक्स होती है कि डिफरेंट हमारे सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं. डिफरेंशियल प्राइसिंग हम बात करते हैं. इट मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, place and customers ability to pay. It is used to smoothen out the fluctuations in the demand. आपने अगर देखा होगा हम अगर जो रात की एकदम प्राइम टाइम होता है 8 to 10, सुबह 8 to 10 उस टाइम पे अगर आपको एडवर्टाइजिंग टीवी में करनी है या देनी है किसी चैनल्स में उसका टैरिफ रेट बहुत कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है जो नॉन प्राइम टाइम्स होते हैं. प्लीज अगर हम बात करते हैं सिनेमा हॉल्स में अगर आपको एडवर्टाइज करना है यू हैव टू पे मोर. कस्टमर्स एबिलिटी टू पे. हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आसपास जाते हैं, हम उनको पर्सुएट करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए. अगर वो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं हम उसी ही की तरफ से हम उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं और उसी प्राइस को फ्लक्चुएट हम स्मूदन कर सकते हैं अपने प्रोसेस को कि हम डिफरेंट कि हमारी डिमांड कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को एक प्राइस रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का या एक सर्विस का. Next, we have diversionary pricing. It implies a low price for basic services to attract customers. Once the customer is attracted, high price is charged for the related services. For example, a restaurant may charge low price for the basic meal and compensate the loss by charging the high prices for the ice cream, cold drinks, etc. आपने अगर देखा हो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फाइन डाइन में जाते हो कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा हाईली प्राइस होती है
होती तो वो 20 रुपीज की, 30 की या 40 की क्वांटिटी होती है, बट वो प्राइस हाई क्यों होती है? क्योंकि उनको और सारी जो वो एक्सपेंसेस फॉर्म्स करती है या रेस्टोरेंट्स करता है, उसको वो कवर अप करना पड़ता है हमारे इन सारे प्राइसेस में से। Next, we have discount pricing. It is the practice of offering a discount to the intermediaries, such as stockbrokers, property dealers, advertising agencies, for rendering a service. It may be used to stimulate demand and to promote a new service. स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज होती है, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उसको हम डिस्काउंट प्राइसिंग देते हैं। उनकी कमीशन होती है बिटवीन कि हमारा जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी सर्विसेज क्यों लेते हैं? बिकॉज दे आर प्रोफेशनल इन दैट एरिया, तो वो हमारी हेल्प करेंगे उस चीज को, हमारे प्रोडक्ट को गेन करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव गारंटीड प्राइसिंग। अंडर दिस स्ट्रैटेजी, पेमेंट इज टू बी मेड ओनली आफ्टर द रिजल्ट्स आर अचीव्ड। For instance, a property dealer charges his commission only after the deal is actually made. Next, we have high price maintenance. This strategy is used when the high price associated with the quality of services. Many lawyers and doctors and other professionals use this strategy. So, high price maintenance क्या हो गया कि जैसे जैसे क्वालिटी हम इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे प्राइस उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, या हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को एसोसिएट कर सकते हैं या फिर एक प्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन। सर्विसेज आर intangible and it is difficult to sample them. Customer finds it difficult to evaluate the quality and the nature of service before buying it. The customer relies more on the subjective judgment rather than the concrete evidence. The promotion strategy for services should be designed to help the customer overcome these problems. प्रमोशन में हमें, अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि यूज सिंपल क्लियर मैसेजेस। अनलेस एंड अनटिल मेरे प्रोडक्ट का मैसेज ही क्लियर नहीं होगा, आप वो प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो एडवर्टाइजिंग की या सर्विसेज की हम बात करते हैं, तो आर इंक्लूडेड अगर इंश्योरेंस। सो वीवर आर प्रमोशन। सो उसमें हमने एडवर्टाइजिंग किया, पर्सनल सेलिंग किया, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम सर्विस की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस, सो व्हाट आर थिंग्स आर इंक्लूडेड? अगर इंश्योरेंस होगा, हमें सर्विस के लिए एजेंट चाहिए। होटल है, हमें सर्विस के लिए एजेंट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन है, एयरलाइंस है, हमें एजेंट्स चाहिए। होटल्स चाहिए, शेयर्स है, हमें ब्रोकर चाहिए। फिनेंशियल सर्विसेज है, हमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज चाहिए। नीड दिस।
See, there are 7 P's now. 3 more P's are added, which is people, physical evidence, and the process. So the further process या further अगर हम marketing mix की बात करते हैं, अगर अभी हम आज की time की बात करते हैं, so there are 7 P's now. So what are new P's? People, physical evidence, and the process. So people क्या क्या है हमारे पास? The service personnel play a very important role in marketing of the service. हम people की जो हमारा human resource है, जो हमारी help करता है हमें sell, हमारी चीजें sell off करने में. So that is also a part of people, that is also a part of marketing. Next is physical evidence. Physical evidence क्या होता है? The influence जो हमारी service होती है, जो middlemen होते हैं. For example, seating arrangement and the interior designer decor of the theater are the physical evidence कि हम ambience क्या provide कर रहे हैं अपने customers को. That is also, that is a part of physical evidence. एक essential होता है, एक peripheral होता है. Essential होता है कि जो बहुत important है कि हमें वो करना ही है. Peripheral होता है that is dependent कि हर एक किसी का, हर एक interior designer, एक ambience, एक स्ट्रक्चर एक डिफरेंट होता है. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. हर एक किस्म का, हर एक चीज का, जगह का अलग अलग एम्बियंस होता है. नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस. Process refers to the system by which the customer receives delivery of the services. कस्टम प्रोसेस क्या हो गया? सिस्टम है हमारा, कस्टमर को कैसे हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. Next is what are the factors determining the marketing mix. क्या क्या factor है, क्या क्या कैसे कैसे वो determine करते हैं. First is nature of product. The consumer good requires a different marketing mix as compared to the industrial goods. For example, a much wider distribution and a greater promotion is needed for consumer goods than industrial terms. इंडस्ट्रियल में हमें पता है कि कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कैसे यूज होंगे, क्या पर्पस है. कंज्यूमर में डिफरेंट एक ही तरीके की 20 चीजें, 100 चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तो हमें हर एक टारगेट कस्टमर्स के लिए एक डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स प्रोड्यूस उसको डिजाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव द स्टेज ऑफ मार्केटिंग साइकिल. ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन अगर स्टेज होती है, हमें बहुत ज्यादा हैवी मार्केटिंग करनी पड़ती है एज कंपेयर. जब हमारा कंपैरेटिवली प्रोडक्ट चल गया तो हम उसकी क्वालिटी को एक मेंटेन करके न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. हमारी कंपैरेटिवली हम मार्केटिंग को कम कर सकते हैं. कंपटीशन हम बात करते हैं जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, प्राइस ऊपर नीचे जाएंगे, एडवर्टाइजिंग ज्यादा चाहिए. जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, सो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजिंग की बहुत ज्यादा या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. मार्केटिंग मिक्स हम उस तरीके से डिजाइन करेंगे, हमारा मार्केटिंग में जो हम पैसा खर्च करते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव efficiency of channel. When the firm uses direct selling, large investments has to be made in storage, advertising of goods. और जैसे जैसे हमारे चैनल्स बढ़ते रहते हैं, हमारा वेयर हाउसिंग का खर्चा और इन सब चीजों का एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. इन द केस in case the firm has adequate funds, it improve product quality features and spend heavily on advertising. But when there is shortage of funds, the use of established trade channels and limited advertising becomes necessary. Next, we have importance of marketing mix. A well-designed marketing mix offers the following benefit. Link. Marketing mix serve as a link between the business firm and its customers. Synergy. In a sound marketing mix, different elements support and reinforce one another. Such a balance helps to provide the benefit of synergy. सिनर्जी का मतलब जो एलिमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव गाइड. द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेसेस दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट पे डिपेंडेंट है. डायनामिज्म.
The marketing mix is modified whenever the need and the preferences of the customer changes. It helps to introduce flexibility in marketing. Next, we have higher earnings. By meeting the requirements of different types of customers, marketing mix helps to increase sales, turnover and profit of the business. So automatically higher earnings हमारी help जो requirements होती है customers की उसके according turnover या फिर एक profit का business हमारा automatically increase हो जाएगा. So we are done with this topic. We have covered marketing mix in this class. So if you people have any doubt, if you have any question and answers, you can just ask me. Tell me, Ayush. See, I don't open the chat. I can open the chat in the last end session only. So please tell me. PDF and all I will send. Promotion वाला topic था. फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है यार? फिजिकल एविडेंस की हमारे पास प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे, हाँ, जैसे हम अगर सीटिंग एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो जो उसका एम्बियंस हो गया दैट इज द फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस में क्या होता है, कुछ जरूरी चीजें होती है और कुछ सप्लीमेंट्री होती है. जरूरी का मतलब जरूरी का मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और सप्लीमेंट्री है जो हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं. अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट, और अगर हम उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे दैट इज ऑल टुगेदर कि वो डिफरेंट है, कि वो हमारी मर्जी है हमें करना है या नहीं करना. सो दैट इज फिजिकल एविडेंस. देयर आर टू इम्पोर्टेंट एंड पेरिफेरल मीन्स सप्लीमेंट्री जो हम अपनी मर्जी से करते हैं. एनी अदर डाउट? Okay, I'm ending my class. I'll send you the PDF on your groups. Thank you so much, sir. I am ending my class. Sir, I am leaving my class. I'm done for Okay, today. ma'am. Okay. Thank you, sir.